Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are solving an important question from review exercise 3, class 9, question number 16. This question is based on the sets and it's one of the most interesting and practical problems. Let's understand it together step by step. In this question, the questioner told us that there are 300 software developers in a company. The survey results are 150 developers like Python. First, read the question statement carefully. Find out the given things means the union they given is 300. So mention you're going to that union is equal to 300. Then the survey results are 150 developers like Python. Python को P से डिनोट कर देंगे means the number of developers who like Python is equal to 150. Numerical way में mention करेंगे number of Python developers 150. Then 130 developers like Java. Java को आप J से डिनोट कर देंगे means number of developers who like Java is equal to 130. So mention is like that number of Java developers is 130. 120 developers like PHP. PHP को आप H से डिनोट कर दें. Number of developers who like PHP is equal to 120. Mention in number of developers like PHP is equal to 120. 70 developers like both Python and Java. आप एक चीज़ की थिंग रिमेंबर रखें क्वेश्चन स्टेटमेंट में वेन एवर एंड वेर एवर दे यूज़ इन सेट एंड यू आर गोइंग टू राइट द इंटरसेक्शन साइन. और अगर वो और का वर्ड यूज़ करते हैं वी आर गोइंग टू राइट द यूनियन साइन. In this question, 70 developers like both Python and Java means P and intersection J is equal to 70 developers. It becomes number of P intersection J is equal to 70. 60 developers like both Python and PHP. P for Python and intersection PHP for H sign means number of P intersection H is equal to 60. $50 developers like both Java and PHP. 50 developers means G, J and intersection PHP H sign number of J intersection H is equal to 50. $40 developers like all three languages. 40 developer like all three languages means that Java intersection P intersection H is equal to 40. Means the intersection between all these three language and P intersection J intersection H is equal to 40. This is all given in the question statement. ये सब हमें question statement में given है. हमने just read किया question statement को find out these things by reading the statement. Now see how many developers use at least one of these languages. फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में उन्होंने डिमांड की है कि डेवलपर्स एटलीस्ट दीज लैंग्वेज. हाउ मेनी डेवलपर्स यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज. कितने मीन्स पाइथन जावा और PHP में से एटलीस्ट कोई ना कोई. एटलीस्ट का मतलब होता है या तो पाइथन यूज़ करेंगे पाइथन और जावा और PHP इन तीनों में से कोई एक एटलीस्ट वन लैंग्वेज यूज़ करेंगे. अभी हमने डिस्कस किया था जहाँ स्टेटमेंट में और का वर्ड यूज़ होता है वी आर गोइंग टू पुट द यूनियन साइन. P यूनियन J यूनियन H मीन्स फर्स्ट पार्ट में हमें P यूनियन J यूनियन H कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द स्टेटमेंट. एटलीस्ट का मतलब होता है कि हमने और कैलकुलेट करना है पाइथन जावा और PHP के दरमियान. तो यूनियन कैलकुलेट करेंगे वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ P यूनियन J यूनियन H. नाउ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द थ्री सेट्स को हम यूज़ करते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सिंपल उसका फार्मूला प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे. मेंशन द फार्मूला एंड देन substitute the values, we get our required answer. If in the exam, if you by mistake you don't remember the formula, तो when what you have to do, simple क्या करना है कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में फार्मूला अरेंजमेंट ऑर्डर में ही गिवन है. इन तीनों को ऐड कर देंगे. ये एक अरेंजमेंट ऑर्डर में गिवन था हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. ऐड दीज थ्री देन सब्ट्रैक्ट दीज इंटरसेक्शन देन अगेन ऐड द लास्ट वन वी गेट द फार्मूला. फार्मूला हमारे पास मिल जाएगा. पहले इन तीनों को ऐड कर देते हैं. NP प्लस NJ plus NH number of developers of Java plus number of developers of PHP ऐड किया. अब इन तीनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. माइनस P इंटरसेक्शन J माइनस P इंटरसेक्शन H माइनस J इंटरसेक्शन H प्लस साइन P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H.
सिंपल गिवन चीज़ों को हमने फॉर्मूले की फॉर्मेशन में लिख दिया. आफ्टर राइटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जस्ट सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज. इनके रिजल्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे. NPH 150 है हमारे पास, जावा इज 130, PHP 120 माइनस P इंटरसेक्शन J 70, P intersection H 60, so minus 60, J intersection H 50, minus 50, plus intersection of all these three set is equal to 40. Now use your calculator and get the answer. First 150 plus 130, plus 120, minus 70, minus 60, minus 50 plus 40, we get 260 answer, which is equal to 260. This is our answer of the first part. Second part, how many developers use only one of these language. अब इसको में क्या कैलकुलेट करना है कि कितने डेवलपर्स इनमें से कोई एक, लास्ट में था एटलीस्ट, ओनली. नाउ द वर्ड इज ओनली मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ developers who only use पाइथन. सबका बारी बारी कैलकुलेट कर लेंगे. पाइथन का नंबर ऑफ डेवलपर्स वो यूज़ ओनली पाइथन, नंबर ऑफ डेवलपर्स यूज़ ओनली जावा, द नंबर ऑफ डेवलपर्स वो यूज़ ओनली PHP. पहले पाइथन के लिए कैलकुलेट करते हैं. फार्मूला क्या होगा, फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, फार्मूला इस तरह कैलकुलेट होगा इसका कि आपके पास जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव का फार्मूला है, इसमें जहाँ जहाँ पाइथन P का वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ हम वैल्यूज़ को ले लेंगे. जैसे NP है, आप इसे मेंशन कर देंगे NP, देन माइनस NP इंटरसेक्शन J, minus NP intersection J, minus NP intersection H, then last plus NP intersection J intersection H. Now substitute the values, provided values in the given statement. NP की वैल्यू में क्या गिवन है, NP की वैल्यू में 150 गिवन है, 150. P intersection J की वैल्यू हमें क्या गिवन है, there is minus sign, P intersection वैल्यू they given us 70 और P intersection H की हमें वैल्यू गिवन है 60. It become minus 70 minus 60 and in question statement P intersection J intersection H value they given us plus 40. Now use your calculator. Calculator use करने के बाद 150 minus 70 minus 60 plus 40, we get 60. Means the number of developers we used only Python is 60. Now we are going to calculate the number of developers we use only Java. Number of developers only Java. Java के लिए क्या फार्मूला होगा, दोबारा प्रिंसिपल इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के फार्मूले की तरफ चलते हैं. जहाँ जहाँ J का वर्ड है वो फार्मूला लोकेट कर लेते हैं. NJ, N ब्रैकेट J, माइनस साइन, इसमें भी हमारे पास J मौजूद है तो NP इंटरसेक्शन J, देन अगेन माइनस NJ इंटरसेक्शन H, and last intersection of all three languages plus NP intersection Java intersection PHP. Now substitute the values. NJ value they given us 130, P intersection J value they given us 70 and J intersection H value they given us 50. Minus 70 minus 50 and plus sign. P intersection J intersection H the value given us in question statement is 40. Now use your calculator. 130 minus 70 minus 50 plus 40, we get 50. Means the number of developers you use only Java is equal to 50. Third language is PHP. Means the number of developers who only use PHP. कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोबारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के फार्मूले की तरफ चले जाएंगे. जहाँ PHP का वर्ड मीन्स एज का वर्ड हमने उसको सिंबलाइज किया था, उसको सपोज किया था हमने PHP के लिए, हम इसको यूज़ करेंगे N ब्रैकेट H, P इंटरसेक्शन H माइनस J इंटरसेक्शन H माइनस N P इंटरसेक्शन H माइनस N J इंटरसेक्शन H, लास्ट प्लस N P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H. Now substitute the values.
and H value they given us 120 minus P intersection H 60 and J intersection H 50 minus 60 minus 50 plus intersection of all these three is 40. All these provided in the question statement. Now use your calculator. 120 minus 60 minus 50 plus 40 equal to 50. सिंपल इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस पार्ट में हमने बी पार्ट में उन्होंने कहा था कि हाउ मेनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, इनमें से कोई सी एक कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. पहले हमने पाइथन के लिए यूज़ किया. हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव में जहाँ जहाँ पाइथन पी का वर्ड यूज़ था उस फॉर्मूले को बाहर निकाल लिया, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वी गेट द वैल्यू ओनली फॉर पाइथन. नाउ देन वी कैलकुलेट फॉर द जावा. उसी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव वैल्यू में जहाँ जहाँ जे की वैल्यू थी वहाँ उस फॉर्मूले को लोकेट करके बाहर सेपरेट कर लिया एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यू वी गेट फॉर ओनली फॉर द जावा डेवलपर्स. देन PHP ओनली के लिए कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव के फॉर्मूले में से जहाँ जहाँ एज की वैल्यू थी उसको हमने लोकेट करके सेपरेट कर लिया और सब्सटीट्यूट द वैल्यू वी गेट आर रिजल्ट. आफ्टर गेटिंग दीज थ्री रिजल्ट हमने कैलकुलेट करना था डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज मीन्स नंबर ऑफ ओनली जावा प्लस नंबर ऑफ ओनली PHP प्लस नंबर ऑफ ओनली पाइथन. इनको ऐड कर देंगे तीनों को. जावा क्या था हमारे पास 50, PHP हमने 50 कैलकुलेट किया ओनली PHP, और नंबर ऑफ पाइथन जो भी हमने कैलकुलेट किया इट्स 60. ऐड करेंगे वी गेट 160 मीन्स द डेवलपर वी यूज ओनली वन लैंग्वेज इज इक्वल टू 160. दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दिस लैंग्वेज. थर्ड पार्ट है हमारा कि हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने डेवलपर्स हैं जिसने यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं की. कैसे कैलकुलेट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स क्या है हमारे पास 300. टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स वी हैव 300. इसमें से सेपरेट कर देंगे उन डेवलपर के वो यूज़ ओनली एटलीस्ट वन लैंग्वेज. वो यूज़ ओनली एटलीस्ट वन लैंग्वेज वी ऑलरेडी कैलकुलेट इन द फर्स्ट पार्ट इज़ 260. जो डेवलपर एटलीस्ट वन लैंग्वेज यूज़ करते हैं इट्स 260 है. हमने कैलकुलेट करना है जो कोई भी यूज़ नहीं करते, तो टोटल नंबर ऑफ डेवलपर में से 260 को माइनस कर देंगे, वी गेट आर रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज़ इक्वल टू 40. इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी. डी पार्ट हाउ मेनी डेवलपर यूज़ ओनली PHP. सिंपल हमने बी पार्ट में ये स्टेप किया भी है, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डेवलपर्स ओनली PHP. जस्ट क्या करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के फार्मूले में जहाँ जहाँ एज है उसको फार्मूले को सब्सटीट्यूट कर लेंगे. वेयर इज एच, एन ब्रैकेट एच, क्योंकि हमें सिर्फ PHP के लिए कैलकुलेट करना है, माइनस P इंटरसेक्शन एच माइनस J इंटरसेक्शन एच. Then last plus P intersection J intersection H. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. H की वैल्यू क्या है हमारे पास 120 और P इंटरसेक्शन H की क्या है 60. 120 माइनस साइन P इंटरसेक्शन H वी हैव वैल्यू 60 माइनस J इंटरसेक्शन H वी हैव वैल्यू 50 प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री वैल्यू वी हैव 40. Substitute these values. Use your calculator, we get 50. Means the number of developer who only use PHP is equal to 50. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.